یہ صحرائے عرب کی تنہا گھاٹی تھی۔ رات کا سناٹا تھا اور ہوا تھمی ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں دنیا کے سردار اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دور اندھیرے میں چھپے وہ مخلوق رک گئے اور ہر لفظ غور سے سنا۔ ان میں سے ایک نے کہا، تھم جاؤ، یہ کیسی آواز ہے جو دل کو کھینچ رہی ہے؟ یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا۔ روئے زمین پر اللہ نے صرف 2 مخلوق ایسی پیدا کی ہیں جن کو مکمل شعور عطا فرمایا اور اس بات کا بھی مکمل اختیار دیا کہ چاہیں تو اپنے لیے سیدھی راہ اختیار کریں اور جنت میں جائیں اور چاہیں تو غلط راہ پر چل کر سیدھا جہنم میں جائیں۔ اپنے احکامات بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور کتابیں بھیجی، چنانچہ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہ صرف انسان بلکہ جنوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا، اور جس طرح آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر صحابہ نے اسلام قبول کیا، اسی طرح قوم جنات نے بھی اسلام قبول کیا۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنات نے محسوس کیا کہ ان کے بعض آزادیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پہلے جنات کا معمول یہ تھا کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے اور کوشش کرتے تھے کہ عرش کی خبریں معلوم کریں۔ فرشتوں کی باہمی گفتگو سے کسی بات کی خبر ہو جاتی تو وہ ان باتوں میں کچھ جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے، اور ان خبروں پر ہی کاہنوں کا کاروبار چلتا تھا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو عرش پر سخت پہرا لگ گیا تاکہ کوئی ان خبروں پر کان نہ لگا سکے۔ لہذا جنوں نے اچانک یہ محسوس کیا کہ ہر طرف فرشتوں کی سخت پہرے لگ گئے ہیں اور شہاب ثاقب کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے تو فرشتوں کے پہروں کی وجہ سے انہیں اوپر جانے سے روک دیا جاتا، اور اگر چوری چھپے کسی طرف سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ان پر شہاب برستے۔ اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ زمین میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کی تحقیق کے لیے زمین کے مشرق اور مغرب اور ہر طرف جنات کے وفود بھیجے گئے کہ وہ حقیقت کا سراغ لگانے کی کوشش کریں، اور اسی کوشش میں وہ مقام نخلا میں جا پہنچے جہاں ان کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ یہ قوم جنات کی حضور سے پہلی ملاقات تھی۔ دراصل اس واقعے کا تعلق سفر طائف سے تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں کا سفر فرمایا، وہیں آپ نے مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع وادی طائف بھی تشریف لے گئے تھے۔ لیکن طائف کے سرداروں نے حضور کی باتوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کی سخت ناقدری کی۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، تالیاں بجائیں اور حضور کو پتھر مارے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت چوٹیں آئیں۔ اس رویے سے حضور بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ کو بہت دکھ پہنچا کہ ایک شخص نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے رکے تو وہاں ایک شخص نے حضور کی خدمت میں انگور پیش کی۔ تھوڑی توقف کے بعد آپ نے پھر مکہ کی جانب سفر شروع کیا۔ راستے میں حضور نے ایک وادی میں قیام فرمایا جسے وادی نخلا کہا جاتا ہے، اور جہاں کائنات کی ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا کہ ایک طرف زخموں سے چور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دوسری طرف وہ مخلوق کہ جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دراصل وادی نخلا مکہ اور طائف کے درمیان ایک مشہور وادی ہے جو مکہ سے 40 سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ عربی میں نخلا کا مطلب کھجور ہے۔ غالباً اس وادی کا نام اس کے درختوں کی کثرت کی وجہ سے اور کھجور کے باغات کی وجہ سے اخذ کیا گیا ہے۔
ये वादी सदियों से कुरैश और ताइफ वालों के तजारती काफलों की गुजरगाह और आरामगाह थी। यहाँ पानी के चश्मे थे, दरख्त थे और सायादार जगह थी, इसलिए मुसाफिर यहाँ आराम जरूर करते थे और ये जगह उनके लिए इंतहाई आरामदा मकाम था, जहाँ खजूर के पत्तों की सरसराहट से उन्हें राहत बख्शती थी। बहरहाल जब हुजूर पाक वादी नखला में कयाम पजीर हुए तो एक रात हुजूर नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल थे। रात के सन्नाटे और खामोशी में इस बयाबान के बीच हुजूर कुरान मजीद बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे कि वहां से जिन्नों के एक जमात का गुजर हुआ। उन्होंने जब इस खूबसूरत आवाज में कलाम इलाही को सुना तो वो रुक गए और खामोशी से मजीद सुनने लगे। वो इसे सुनते ही रहे, यहां तक कि वो हैरान रह गए। फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा कि खामोश हो जाओ और गौर से सुनो। जब कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल हुई तो वो जिन्नात अपने कौम में वापस गए और उनसे कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो मूसा के बाद नाजिल की गई और जो अपने से पहले की किताबों की तस्दीक करती है और सच्चाई और सीधी राह की तरफ रहनुमाई करती है, सो हम उस पर ईमान ले आए। इब्ने कसीर लिखते हैं कि यह पहली मर्तबा था कि जब जिन्नात ने कुरान बर्राह रास्त हुजूर पाक से सुना और ईमान लाए थे। उन जिन्नों की तादाद कुल 7 थी और उनका ताल्लुक जिन्नों की एक नस्ल नसीबीन से था। उनके नाम हस्सा, मस्सा, शासरा, नासरा, इब्नुल अरब, अमीन और अगजा माए था। नसीबीन दरअसल शाम और तुर्की के सरहदों पर वाक़े एक कदीम शहर था, जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही जिन्नों की एक बड़ी आबादी रहती थी। ये जिन बनु जान की नस्ल से थे, यानी जिन्नों की वो पहली नस्ल जिसे अल्लाह ने हजरत आदम से पहले इस जमीन पर बसाया था। बहरहाल जिन्नों की ये आमद पहली बार थी और अहदीस से पता चलता है कि इसके बाद उनकी आमदो रफ्त होती रही। जिन्नों की आमद और उनके कबूल इस्लाम का वाक़या दर हकीकत अल्लाह की जानिब से दूसरी मदद थी जो उसने अपने गैब के खजाने से अपने उस लश्कर के जरिया फरमाई थी। इस वाक़े के ताल्लुक से जो आयात भी नाजिल हुई उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की कामयाबी की बशारतें थीं और इस बात की वजाहत भी कि कायनात की कोई भी ताकत इस दावत की कामयाबी के राह में हायल नहीं हो सकती। इस नुसरत और इन बशारतों के सामने गम व अलम के वो सारे बादल छट गए जो ताइफ से निकलते वक्त पत्थर खाने की वजह से हुजूर पर छाए थे। हुजूर ने ये अज़म फरमा लिया कि अब मक्का पलटना है और नए सिरे से दावत इस्लाम और तबलीग के काम में सरगर्म होना है। काब बिन अहबार कहते हैं कि जब नसीबीन के ये 7 जिन्नों ने अपने कौम को कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बताया तो 300 जिन्नों का वफद बाद में मकाम हुजून पर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। लिहाजा हजरत अनस अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का में जिन्नों का एक वफद आया तो हुजूर ने फरमाया, मेरे साथ सिर्फ वो शख्स चले जिसके दिल में जर्रा भर आलूदगी ना हो। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया कि हुजूर ने नुबैस से भरा एक बर्तन लिया, यहाँ तक कि हम हुजून पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक जगह बिठाकर मेरे इर्द गिर्द लकीर खींच दी और फरमाया, जब तक मैं वापस ना आऊं यहीं ठहरे रहो। इसके बाद हुजूर जिन्नात के पास तशरीफ ले गए। मैंने देखा कि जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। रावी का बयान है कि उन जिन्नात के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, इसके बावजूद उनके शर्मगाह नजर नहीं आते थे। ये लोग दुबले पतले मगर लंबे कद के थे। ये लोग हुजूर के इर्द गिर्द इस तरह जमा थे गोया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार होना चाहते हो। हुजूर उनसे रात भर बातें करते रहे। सुबह के वक्त आप मेरे पास तशरीफ लाए और मुझसे दरियाफ्त किया, क्या तुम रात भर खड़े रहे? मैंने कहा कि आपने मुझसे कहा था कि मेरे आने तक यहीं ठहरे रहना। मैंने हुजूर से पूछा, ये कौन लोग थे?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नसीबीन के जिन्नात थे, ये मेरे पास फैसला करवाने आए थे। फिर हुजूर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास वुजू का पानी है? मैंने अर्ज किया कि नुबैज़ है। फरमाया, खजूर भी पाक है और पानी भी पाक है। फिर हुजूर ने वजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। इतने में दो जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि नमाज में आप हमारी इमामत करें। हुजूर पाक ने उनकी इमामत की। इस नमाज फजर में आपने सूरह जिन की तिलावत फरमाई। फिर जिन्नों ने अर्ज किया कि हम बहुत दूर दराज इलाके के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपने लिए ज़्यादा राह तलब किया। हुजूर ने फरमाया, गोबर तुम्हारे लिए खजूर और हड्डी गोश्तदार ग़िज़ा बन जाएगी। जिन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लोग हमारे ग़िज़ा को ख़राब कर देते हैं। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी और गोबर पर इस्तिंजा करने से मना फरमा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए तो फरमाया, तुमने क्या देखा? मैंने अर्ज किया, मैंने काले काले मर्दों को देखा था जो सफेद कपड़े पहने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जिन्नात थे और मैंने उन्हें उनकी कौम की तरफ दीन इस्लाम का मुबल्लिग बनाकर भेजा है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि रोशनी हो जाने पर मैं उस जगह गया जहां हुजूर पाक रात भर रहे थे, तो वहां 70 ऊंटों के बैठने के निशानात थे। रिवायतों से मालूम होता है कि वक्फे वक्फे से जिन्नों के वफद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुलाकात के लिए आया करते थे, और जिन्नों के बहुत सारे नस्लों और कबीलों ने हुजूर की खिदमत में हाजिरी देकर फैज़ याबी हासिल की थी। लिहाजा रिवायत है कि अलकमा ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछा कि क्या कोई शख्स लैलतुल जिन में हुजूर की सोहबत में रहा था? इब्न मसूद ने कहा, नहीं, लेकिन एक रात मक्का मुअज़्ज़मा में हुजूर पाक किसी को इत्तला किए बगैर मक्का से बाहर तशरीफ ले गए। हम लोग सारी रात परेशान रहे। सुबह हुई तो हुजूर को हिरा की तरफ से आते देखा। साहबा कराम की परेशानी को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिन्नात का एक कासिद आया था। मैंने उनके पास जाकर कुरान पढ़कर सुनाया। मैंने उनके सामने सूरह रहमान की तिलावत की और उन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया वो तुम लोगों के जवाब से बेहतर था। इसके बाद हुजूर ने हमें जिन्नात के कदमों के निशानात और जिन्नात ने जो आग जलाई थी उसके आसार दिखाए। रिवायतों से मालूम होता है कि बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली को कौम जिन्नात में इस्लाम का मुबल्लिग और इशाअत करने की जिम्मेदारी सौंपी, और ये सिलसिला औलाद अली में जारी रहा। बहुत सी रिवायतों में जिन्नों के ग्रोह और वफद का आइम्माए अहले बैत के पास आना साबित है, और ऐसा मालूम होता है कि ये आइम्माए अहले बैत के पास दीनी अहकाम और शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए आया करते थे, और ये जिन्नात अहले बैत रसूल के मुहिब और वफादार थे।